हेलो एवरीवन। तो हम लोग एरोमेटिसिटी कर रहे थे। एरोमेटिसिटी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एन्युलिन्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने एजुलिन के बारे में किया था। ठीक है, इसमें हम एन्युलिन्स के बारे में करेंगे। ठीक है, कि एन्युलिन्स क्या होती है और इनका एरोमेटिक बिहेवियर कैसे निकलेगा। ओके, तो एन्युलिन्स हमारी क्या होती है, ये हमारी जनरली मोनोसाइक्लिक पोलिन्स होती हैं। ठीक है, विच कंटेन द अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड सिस्टम, मीन्स सिंपली वी कैन से कॉन्जुगेशन। ओके, तो in general annulines are the name for monocyclic polyenes having alternate single and double bond, or we can say that conjugation. Okay, having the general formula, these have general formula CH double bond CH N, मीन्स CNHN आप बोल सकते हो। ठीक है, सो वेयर N इज इक्वल टू 2, 3, 4 and etc. Okay, now the name of these system are written by taking the number of carbon atoms, okay, and followed by the name annulines. Means how can we write the name? Simply this is the system by which the annulines are named. If we have to write the name of the annulines, then we will write it as N-annulines. Then what is N here? N is the number of carbon atoms of the ring which are taking part in कॉन्जुगेशन या विच आर अ पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्योंकि कई रिंग्स होंगी हमारी जहाँ पे इन मिडल कोई कार्बन ग्रुप होगा, बट दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्जुगेशन। ओके, एंड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एरोमेटिक बिहेवियर ऑफ द रिंग। ओके, सो हमें सिर्फ वही कार्बन एटम्स देखने हैं जो कि हमारे क्या होंगे, विच आर द पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन सिस्टम। Okay, so these are named by writing the number of carbon atoms of the ring which are included in the conjugation in a square bracket followed by the name annulines. Okay, so simplest जो हमारा एनुलिन होगा वो हम किसको बोलेंगे? जैसे this is cyclobutadiene. Okay, this is a monocyclic polyene diene. Okay, it has alternate single and double bond, means conjugation. So it is named as, now count the number of carbon atoms, they 1, 2, 3 and 4 close in the square bracket and write annulene. So it is known as 4-annulene. Okay, after that benzene, simple, count the number of carbon atoms, 6 and follow by annulene, means benzene is known as 6-annulene. After that cot, cyclooctatetraene, 2, 3, 4, it is also monocyclic polyene. ठीक है, having conjugation, so it is named as how many carbon atoms? 8 carbon atoms, so it is named as 8-annulene. Okay, नाउ एरोमेटिक बिहेवियर इनका हम पीछे देख चुके हैं। दिस इज क्या होगा इसका एरोमेटिक बिहेवियर? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक बट इट इज मच अनस्टेबल इन दिस फॉर्म, सो इट डाइमराइज टू फॉर्म अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ओके,
Now 6-annullate benzene, well know it is aromatic. कोट साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो हमने की थी, दिखने में क्या लग रहा है, एंटी एरोमेटिक होगा, बट एक्चुअली इट इज़ नॉन एरोमेटिक बिकॉज इट चेंजेस इट्स शेप टू टर्ब शेप, मीन्स इट बिकम्स नॉन प्लेनर एंड forms it non-aromatic because the stability order is aromatic, then non-aromatic, and then anti-aromatic. This is the stability order of the aromatic, non-aromatic, anti-aromatic compounds. Okay, after that एक हमने एग्जाम्पल किया था 10-annulenes का. This is 10-annuline because monocyclic Pauling system, number of carbon atoms 10, so its name will be 10-annuline. Okay, now it seems to be 2, 4, 6, 8, 10 aromatic. It seems to be aromatic. Okay, but it is not aromatic. What would be its nature? It would be non-aromatic because of these 1,6 hydrogen interactions, or we can say interannular hydrogen repulsion, ठीक है, which make it non-planar and it becomes non-aromatic. Okay, this is 10-annuline. Now next example, this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, how many pi electrons? 12 pi electrons, ठीक है, and it is 12-annuline. Okay, now its aromatic behavior, it should be 12 pi electrons है, means anti aromatic. Okay, अब this is hydrogen, this hydrogen and this hydrogen. अब आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, इनके बीच में भी तो रिपल्शन हो सकता है, ठीक है, तो हाँ यहाँ पे भी रिपल्शन होगा इन बिटवीन दीज हाइड्रोजन्स, बट ये जो रिपल्शन है ये उतना नहीं है कि ये इस रिंग को ही क्या कर दे, नॉन प्लेनर बना दे. मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन जो है वो क्या है, कम है, विच इज़ नॉट इनफ टू मेक द रिंग नॉन प्लेनर. ओके, सो इट इज़ एंटी एरोमेटिक, सो इट वुड बी प्लेनर, ना कि क्या होगा हमारा, नॉन प्लेनर, ठीक है, बिकॉज द इंटरएन्युलर हाइड्रोजन रिपल्शन इज मच लेस and it's not enough to make the ring non-planar, that's why it is anti-aromatic. Okay, after that one more example, this one. Okay, now this is 14-annuline. 14-annuline. Okay, अब इसका कैसा नेचर होगा, 14-annuline है, काउंट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 into 2, 16 pi electrons. Am I right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 pi electrons. Okay, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. It's a 16-annuline, not 14-annuline. Okay, sorry for that, 16-annuline. ठीक है, तो 16-annuline है, तो what would be its nature? It would be aromatic or non-aromatic. It is planar, cyclic, conjugated, but it contains 16 pi electrons, so it would be anti-aromatic. Okay, उसके बाद 14-annuline लेके चलते हैं. तो 14-annuline ही ड्रॉ कर रहे थे, 16 हो गई. दिस इज आवर 14-annuline. ओके, this one, this one, this one, this one and this one. Now count
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okay, this is 14 aniline. Now what would be its aromatic nature? It would be aromatic, non-aromatic, or anti-aromatic. Which one? So it has 14 pi electrons, means it belongs to 4n plus 2 pi electron system. Okay, now हाइड्रोजन 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 एंड दिस हाइड्रोजन. अब रिपल्शन तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा 12 एनुलिन सिस्टम था उससे भी कम रिपल्शन है, बिकॉज जितना रिंग साइज हमारा इंक्रीज होता जाएगा इंटर एनुलर हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शन भी उतना ही कम होता जाएगा. ठीक है, और वो रिपल्शन इतना कम होगा कि वो हमारी रिंग को नॉन प्लेनर नहीं बना सकता. ठीक है, सो 14 एनुलिन वुड बी एरोमेटिक इन नेचर. ओके, एरोमेटिक इन नेचर. तो एनुलिन्स क्या होती है हमारी? दीज आर द जनरल मोनोसाइक्लिक पॉलिन्स which have alternate single or double bonds, means you can say that the conjugation or conjugated double bonds. Okay, and these are written as n anulines, where n is the number of carbon atoms included in the conjugation. Okay, तो 4 एनुलिन से लेके हमने अप टू 16 एनुलिन तक किया. 18 एनुलिन भी कर सकते हैं. ठीक है, वो फिर किस में आ जाएगा हमारा? दैट वुड ऑल्सो बी एरोमेटिक, बिकॉज वहाँ पे भी हाइड्रोजन का रिपल्शन हमारा बहुत कम होगा कि वो रिंग को नॉन प्लेनर नहीं कर सकता. तो ये हमने पहले ही किए हुए हैं. दिस इज़ एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक. दिस इज़ नॉन एरोमेटिक बिकॉज इट चेंजेस टू टब शेप, मीन्स बिकम्स नॉन प्लेनर. उसके बाद 10 एनुलिन भी किया था हमने. इसमें भी एंटर एनुलर हाइड्रोजन रिपल्शंस, मीन्स प्रीलॉग इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, ये नॉन प्लेनर बन जाता है. और इसको अगर हमने एरोमेटिक बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? इन हाइड्रोजन्स को रिमूव करके यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप से क्या करवा देते हैं? ब्रिजिंग करवा देते हैं इनकी. तो ये जो रिंग सिस्टम है हमारा वो क्या बन जाएगा? प्लेनर बन जाएगा एंड इट वुड बी एरोमेटिक इन नेचर. उसके बाद 12 एनुलिन. 12 एनुलिन में हमारा क्या है? हाइड्रोजन रिपल्शन तो होगा, लेकिन वो इतना नहीं होता कि ये हमारे रिंग सिस्टम को क्या बना दे? नॉन प्लेनर. इट इज़ मच लेस रिपल्शन. Okay, which is not enough to make the ring system non-planar, so it would be anti-aromatic. After that 16 pi electron system लिया था, means 16 एनुलिन, it would be anti-aromatic. यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स का रिपल्शन होगा, but that is not enough to make the system non-planar, means much less repulsion. तो याद रखिएगा, जितना हमारा रिंग सिस्टम का साइज़ बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारी रिपल्शन क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी. ठीक है, तो वो क्या रहेगा? हमारा प्लेनर रहेगा इसके अंदर. ओके, उसके बाद हमने क्या किया? 14 एनुलिन. 14 एनुलिन वुड बी एरोमेटिक इन नेचर. ओके, सो एनुलिन में इतना ही था. तो इसको देखिए, बहुत इजी है. ठीक है, एक बार पढ़ेंगे तो इजीली आ जाएगा, इसमें कोई वो नहीं. बस मेन हमारा होना चाहिए कि हमें हक्कल रूल याद रहना चाहिए. और कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं जो कि दिखने में तो हमारे क्या दिखेंगे आपको? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक दिखेंगे, बट एक्चुअली दे वुड बी नॉन एरोमेटिक. जैसे हमने कॉट का एग्जाम्पल लिया और 10 एनुलिन्स का एग्जाम्पल लिया. ओके, सो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर.